Before we meditate God's word, let's pray. खुदा के कलाम का मुताला करने से पहले चले हम दुआ करेंगे। Our loving, living Heavenly Father, you are a God of grace, mercy, kindness, and compassion, O Lord. You are worthy to be worshipped, O Lord, for what thou art unto us, O Lord. Thou hast not only saved us, O Lord, but thou hast put us on a high pedestal, O Lord. Thou hast given us this good life, O Lord, to enjoy, Lord, because thy word says life is a gift unto us. Even as I meditate a part of the scriptures, dear Lord, make it speak to us from the throne of grace, so that we may be edified and be able to worship you in spirit and in truth. Help us, help both of us, O Lord, even as we convey the message unto the people, dear Lord. People who are hearing also, they may be able to grasp the fullness of your characteristics, so that a good and worthy worship emanates from their heart. Thank you, Lord, even as we pray this prayer in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आमीन। Greetings, everyone, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे खुदावंद यीशुआ के पाक नाम में आप सबों को मैं सलाम, आप सबों के सामने सलाम पेश करता हूँ। I'm truly honored and privileged again to be with you in this evening worship service. और एक बार इस इवनिंग वर्शिप सर्विस में आपके साथ शामिल होने के लिए मैं बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ। My dear friends, we have this Bible in our hands. अजीजों, हमारे दरमियान हमारे हाथों में खुदा का कलाम है। The Bible addresses one problem, that is sin. बाइबल में एक सवाल है और उसका जवाब देती है बाइबल, और वो सवाल है गुनाह। Bible points out to one villain, that is the evil one, the Satan. बाइबल में एक विलन भी है और वो है सातान। Bible points out to one hero, that is Lord Jesus Christ. बाइबल एक हीरो को दिखाती है और वो हीरो है खुदावंद यीशुआ। Bible points out to one purpose, that is to glorify God. और बाइबल एक पर्पस बताती है और वो पर्पस है खुदा का जलाल जाहिर करना। We glorify God by our worship. हमारी इबादत के जरिए से हम हमारे खुदा का जलाल जाहिर करते हैं। The Bible gives us a clear picture of who God is. बाइबल बार बार हमें दिखाती है कि खुदा कौन है। His identity, खुदा की शनाख्त, His character, और उसका किरदार, and His nature. और उसका वजूद जो है। Once you know who God is, खुदा कौन है, जब आप एक बार जानेंगे, you discover who you are. तब आप पहचानेंगे कि आप भी कौन हैं। But there's a problem. लेकिन यहाँ एक तकलीफ है। We cannot understand God with our finite mind. हमारा महदूद जहन से हम खुदा को मुकम्मल तरीके से समझ नहीं पाएंगे। And worshipping the true God requires at least the minimal knowledge of who He is. सच्चे खुदा की इबादत करने के लिए कम से कम वो कौन है, इतना तो जानकारी हासिल करना लाजमी है। But the scriptures make our job very, very easy. इसीलिए खुदा का कलाम हमारे इस काम को आसान कर देता है। God reveals some truths about Himself in the scriptures. क्योंकि नविश्तों में खुदा अपने बारे में अपनी सच्चाइयां जाहिर किया है। In a way that our finite mind can grasp His इस characteristics. तरीके से जाहिर किया है ताकि हमारा जो महदूद जहन है इसको समझ आए। I will show you a few verses whereby God identifies Himself. मैं चंद बातें दिखाऊंगा, उससे हम खुदा की शनाख्त को पहचान सकें। We'll just mention these 5 things. इन 5 बातों को या चीजों को मैं बताता हूँ, But we shall dwell upon only one verse. लेकिन इन 5 में से सिर्फ और सिर्फ एक ही आयत पर आज हम ध्यान करेंगे। In the book of Nehemiah, chapter 9, नहम्याह की किताब बाब नंबर 9, verse 6. Verse 6. आयत नंबर 6। There it says, "You alone are the Lord. You have made the heavens, the heaven of heavens with all their host, the earth and all that is on it, the seas and all that is on them." तू ही अकेला यहोवा है, तूने आसमान और आसमानों के आसमान को और उनके सारे लश्कर को और जमीन को और जो कुछ उस पर है और समुद्रों को और जो कुछ उनमें है बनाया। और All this one verse, if you can encapsulate in one word or one sentence, we can say He is the God, the creator. अगर इस आयत की सारी बातों को अगर मुख्तसरन अगर हमें बताना पड़ेगा तो हम इतना कह सकते हैं कि हमारा खुदा यहोवा जो है वो ही खालिक है। But we need not read the remaining verses. लेकिन बाकी के आयतों को हमें पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है। The second characteristic we know from Isaiah chapter 40 and verse 28. एशिया की किताब चैप्टर 40 और वर्स 28 में it says, "The Lord is the everlasting God."
28 वहां लिखा हुआ है कि हमारा खुदा जो है वो अब्दुल आबाद रहने वाला है, He is the everlasting God. वो हमेशा रहने वाला, अब्दुल आबाद रहने वाला खुदा है। And the third verse is again from this Nehemiah chapter 9 verse 17, और तीसरी आयत भी नहम्याह की किताब से है, which says one phrase which says, "But you are a God of forgiveness." चैप्टर 9 वर्स 17 में लिखा हुआ है, और तू मुआफी बख्शने वाला खुदा है। And the fourth verse I taken from Psalm 68 and verse 20. और चौथी आयत साम 68 और Verse वर्स 20 में लिखा हुआ है, God unto us is a God of deliverances. 68:20। 20. हाँ, हमारा खुदा जो है वो हमारे लिए छुड़ाने वाला खुदा है। And the final verse, और आखिरी आयत Exodus 34 and verse 6, खुरूज की किताब चैप्टर 34 और वर्स 6 में, where it says, the Lord God, compassionate and merciful. वहां लिखा हुआ है कि यहोवा 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 खुदा रहीम और मेहरबान है। So these are the 5 verses. I think it describes God's characteristics. तो ये 5 आयतें हमारे खुदा की शनाख्त और किरदार को बताती हैं। If we study these characteristics अगर इन कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर आप मुताला करेंगे and apply to our individual life, we can see new perspectives of life coming from our side. और इन आयतों की बातों को हमारी निजी जिंदगियों में अगर हम रखेंगे तो हम सबों को एक नया नूर मिलेगा। My dear friends, you may ask me, what is worship? अजीजों, शायद आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि इबादत क्या चीज है। The simple answer is आसान जवाब यह है, telling God about His greatness. खुदा को उसके सामने आकर उसकी अजमत क्या है बताना। And secondly, confessing God's goodness unto us. और दूसरी बात, हम पर उसकी मेहरबानी जो है उसको कबूल करना। So for all these 5 verses, we'll be studying only the third verse. God is a God of forgiveness. तो इन 5 आयतों में से सिर्फ एक आयत आज हम ध्यान करेंगे, और वो है खुदा हमारा मुआफी बख्शने वाला खुदा है। What's His goodness? उसकी मेहरबानी क्या है? His forgiving characteristics. हाँ, उसकी मेहरबानी ये है कि वो मुआफी बख्शता है। That's His greatness also. वो उसकी अजमत भी है। Forgiveness is one of the greatest gifts that God offers to us. मुआफी जो है वो सबसे बड़ी नेमत है जो खुदा हमें बख्शता है। When we are forgiven of our sins, जब हमारे गुनाहों से हमें मुआफी हासिल होती है, what is that happens to us? तो हमें क्या होता है? All our past mistakes, we let them go. हमारे सारे किए हुए गुनाहों को वो उसे खुदा छोड़ देता है। We are not bound by our failures. हमारे गुनाहों से या हमारी कमजोरियों में हम घिरे नहीं रहते हैं, But at the same time, we are uplifted by His love and grace. लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत और अपने फजल से हमें ऊपर उठाकर बिठाता है। When many of us struggle to understand the concept of forgiveness, लेकिन बहुत सारी बार हम खुदा की मुआफी का ये बात जो है इसे समझने में तकलीफ उठाते हैं। one simple way to understand forgiveness is खुदा की मुआफी को समझने का एक आसान तरीका ये है that He gives chance upon chance. वो तरीका ये है कि वो बार बार हमें मौके देते रहता है। Now here comes the most important topic. तो यहाँ पे एक बहुत अहम बात आती है। Yes, we all have been forgiven. हाँ, सही है कि हम सबों को खुदा ने मुआफी बख्शी है, But what's behind this forgiveness? लेकिन इस मुआफी के पीछे क्या है? Number 1, पहली बात, unconditional love. ये मोहब्बत, इस मुआफी के पीछे खुदा का बेशर्त मोहब्बत है। Even in our state and the adjoining state of Andhra Pradesh, we have a free ride of buses for women. हमारे इस रियासत में और हमारे बाजू के रियासत आंध्र प्रदेश में भी हम देखते हैं कि औरतों के लिए फ्री मुफ्त बस सर्विस दिया गया है। But there is one condition. लेकिन एक शर्त है, You need to have an Aadhaar card. आपको आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। You need to have a Telangana address. तेलंगाना एड्रेस आपको दिखाना पड़ेगा। Even in the advertisement we are given so many freebies. हम देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट्स में भी, इश्तिहार में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे फ्रीबीज
दिए जाते हैं। But at the end of that advertisement, there is an asterisk mark which says conditions apply. लेकिन उस एडवर्टाइजमेंट के आखिर में एस्टेरिस्क मार्क लगाया जाता है और लिखा रहता है कि कंडीशंस अप्लाई। But when it comes to God's forgiveness, लेकिन खुदा की मुआफी की बात अगर लेंगे, there are no conditions, no stipulations. कोई भी कंडीशंस नहीं है और कोई भी स्टिपुलेशंस नहीं है। His willingness, God's willingness to forgive us does not depend on what we do. खुदा जब चाहेगा कि हमें मुआफ करे तो वो इन बातों पर मुबनी नहीं है कि हम जो कुछ कर रहे हैं इन पर मुबनी या इन्हिसार नहीं है। His forgiveness depends on what he is. खुदा की मुआफी सिर्फ और सिर्फ वो क्या है, कौन है, उस पर इन्हिसार है। That's why this verse says you are a God of forgiveness. इसीलिए इस आयत में हम पढ़ते हैं कि तू मेहरबान है, खुदा रहीम है। In Exodus 34:7, खुरूज की किताब 34:7 में it says, who forgives our wrongdoings. वहां लिखा हुआ है कि वो हमारे गुनाहों को मुआफ करने वाला है। He forgives us our violation of the law. और अगर हम खुदा की तोरा को वायलेट करेंगे तो वो हमें फिर भी मुआफ करेगा। What's the reason? वजह क्या है? He loves us. वजह ये है कि वो हमसे मोहब्बत रखता है। Even in Psalm 86 and verse 5, हम पढ़ते हैं मज़ामिर की किताब चैप्टर 86 और वर्स 5 में पढ़ते हैं, the psalmist says, for you Lord are good, you are ready to forgive. वहां पे मज़ामिर नवीस ये कहता है कि ऐ यहोवा तू भला है और तू मुआफ करने को तैयार है। And when it comes to the New Testament, in Ephesians 3:19, it says, love of Christ surpasses all knowledge. और एफिसियों की किताब बाब नंबर 3 और आयत नंबर 19 में लिखा हुआ है कि माशियख की उस मोहब्बत जो है वो हमारे जहन के परे है। So what is God's forgiveness based on, founded on? तो खुदा की मुआफी जो है वो किस पर मुनहसिर है? It is based on unconditional love. वो Number one. सिर्फ और सिर्फ बेशर्त मोहब्बत पर मुनहसिर है। And what is the second thing? ये पहली बात होती है। दूसरी बात क्या है? It's uncompromising price that God paid to forgive us. हमें मुआफी बख्शने के लिए खुदा ने अनकॉम्प्रोमाइज्ड प्राइस या मोल चुकाया है। When it comes to paying the price, there was no samjhauta. मोल चुकाने या कीमत अदा करने में खुदा ने कुछ भी समझौता नहीं किया। He did not simply hush up the sins उसने गुनाहों को यूं ही ऐसा नजरअंदाज नहीं किया that you have committed जो आपने किए हैं। in the present world. आजकल के मौजूदा दुनिया में The crimes committed by people are always hushed up. आजकल के दुनिया में जो भी लोग खता गुनाह करते हैं उनकी सारी बदकिरदारी नजरअंदाज की जा रही है। They never come into the open. वो लोग बाहर ज़ुहूर में नहीं आते। They never get the punishment they richly deserve. उनको जो पनिशमेंट या सजा सच में आनी है वो उन पर नहीं आ रही है। But that's not the way with our forgiving God. लेकिन हमारे मुआफी बख्शने वाले खुदा की हालत ऐसी नहीं है। He is not only a God of forgiveness, he is a God of justice. वो मुआफी बख्शने वाला खुदा ही नहीं बल्कि वो आदिल खुदा है। He has to act in a righteous manner. वो हमेशा रास्तबाजी को लेकर अदालत के मुताबिक आदिल होकर वो काम करता है। It required on his part to judge and to punish that sin. हर एक गुनाह को वो सजा देता है और पनिश करता है। Therefore God did something for our sins to be forgiven. इसीलिए खुदा ने हमारे गुनाहों का पनिशमेंट या उनकी सजा के लिए कुछ चीज मुहैया किया है। To forgive us of our sins, he paid a very high price. हमारे गुनाहों को मुआफ करने के लिए खुदा ने बहुत बड़ी कीमत अदा की है। When it comes to our forgiveness, God had only one option. हमारे गुनाहों की मुआफी को लेकर खुदा के सामने एक ही इख्तियार था। He had to pay a price. कुछ कीमत अदा करनी पड़ी। Because the law says, क्योंकि तोरा में लिखा हुआ है without shedding of blood there is no remission of sins. गुनाह के खून के चढ़ाए जाए बिना गुनाहों की मुआफी नहीं होती। So when he thought of forgiving our sins, he saw his son. तो हमारे गुनाहों की मुआफी करने के लिए जब खुदा ने सोचा तो उसने अपने इकलौते बेटे पर नजर की। So he had to sacrifice his only son so that through his blood
we all may be able to obtain the forgiveness of sins. क्योंकि उस इकलौते खुदा के इकलौते बेटे की कुर्बानी से ही हम सबों को उसकी खून की बदौलत मुआफी हासिल होती है। So he did not compromise on the price. इसीलिए खुदा ने कभी भी इस कीमत पर, मोल पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। He never thought about the great price he had to pay. उसको जो बड़ी कीमत अदा करनी थी, उस कीमत के बारे में उसने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। In giving his only beloved son, he gave everything to us. अपने इकलौते बेटे को देने के वास्ते खुदा ने हमको अपना सब कुछ दे दिया। That's why the scripture says we can't really comprehend the liberality of his love. इसीलिए खुदा के कलाम में पढ़ते हैं कि हम समझ नहीं सकते हैं कि उसकी मोहब्बत कितनी बड़ी है। God paid the full price. खुदा ने मुकम्मल मोल या कीमत अदा की। On the cross, our Lord spoke these words, "It is finished." खुदावंद यीशुआ ने सलीब पर कहा, कामिल हो गया। And what did our Lord accomplish on the cross? और हमारे खुदावंद यीशुआ ने सलीब पर क्या हासिल किया था? Redemption of mankind and providing salvation. इंसानियत या सारे इंसानियों की मुआफी और खलासी। Nullified the punishment of sin. गुनाह की सजा जो है खुदावंद यीशुआ ने उसे रद्द कर दी। Brought to naught the power of Satan. और सातान की कुदरत और ताकत जो है उसे भी रद्द कर दी। And removed the fear of death. और मौत का डर जो है उसे भी रद्द कर दिया। So on that cross he conquered these three forces. इस तरीके से इन तीन कुदरतों को सलीब पर उसने उन पर मगलूब आया। So what's the first thing? Unconditional love. तो यहाँ पे पहला शर्त क्या है? हाँ, ये बेशर्त मोहब्बत है। And secondly, uncompromising price. दूसरी बात ये है कि अनकॉम्प्रोमाइज्ड कीमत अदा की है। And thirdly, और तीसरी बात unending grace. वो है लामहदूद फजल। John chapter 1 and verse 16. और जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 1 और 16। For of his fullness we all have received grace upon grace. क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। And Ephesians 2:8. एफिसियों की किताब बाब नंबर 2 और आयत It's a very नंबर 8। familiar verse we know. हम सब इसको जानते हैं। For by grace you have been saved through faith. यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से नजात मिली है। What does the word saved means? नजात का मतलब क्या होता है? Forgiveness of sins. नजात का मतलब होता है गुनाहों की मुआफी। God has been gracious to forgive our sins. हम सबों के गुनाहों को मुआफ करने में खुदा मेहरबान रहा। Unending grace has been showered upon us. लामहदूद फजल खुदा ने हम पर नाजिल फरमाया। How to understand this concept? इस कॉन्सेप्ट को हम किस तरीके से समझ सकेंगे? So suppose you have been given an ice cream cone. मसलन आपको एक आइसक्रीम कोन शायद दिया गया हो। The ice cream itself is so flavorful, tasteful. और आइसक्रीम ही बहुत जायकादार और मजेदार है। It's very attractive and tasty. बहुत अट्रैक्टिव है और बहुत मजेदार है। Suppose the shopkeeper adds nuts and chocolate sauce upon it. और अगर समझें कि शॉपकीपर जो है दुकानदार, वो अगर उन पर नट्स और चॉकलेट वगैरह डाले, Imagine your happiness. और तब आपकी खुशी समझ लीजिए कितनी बड़ी होती है। And your happiness will go further if you keeps on adding nuts after nuts. अगर वो नट्स के ऊपर नट्स और ज्यादा डालते जाए तो आपकी खुशी बढ़ती जाती है। We come at a certain point when we say it's enough. और हम एक बार कह देंगे कुछ वक्त के बाद कि इतना काफी है। That's how we understand God's grace. खुदा के फजल को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। He keeps on adding grace and grace. वो अपना फजल डालते ही देते ही जाता है। We don't really deserve it. हम उसके लिए हकदार नहीं हैं, But he is giving us grace. लेकिन वो अपना फजल हमें देते ही जाता है। God didn't have to forgive us at all. खुदा हमें बिल्कुल मुआफ करना जरूरी नहीं है, But he chose to do so. लेकिन ऐसा करने को वो चाहा। From the beginning itself, शुरू से ही
God knew what tomorrow would bring. कल के दिन क्या होगा हमारी जिंदगी में उसे पता है। What seemed like a small disobedience in the Garden of Eden, बागे एदेन में छोटी सी सरकशी जैसी जो चीज दिखी, this disobedience would send the entire humanity into the lake of fire. वो छोटी सी सरकशी या नाफरमानी, वो गुनाह तमाम इंसानियत पर गुनाह ला कर रखा है। That would be our eternal destination had not God intervened. अगर खुदा हमारे बारे में नहीं सोचता, अगर इंटरवीन नहीं करता, तो हम सब हलाकत में पहुंच जाते। The penalty of sin is death, गुनाह की मजदूरी मौत है, and the penalty has to be paid according to law. और खुदा के कलाम के मुताबिक मजदूरी या पेनाल्टी जरूर अदा करना पड़ता है, Whether we like it or not, हम चाहें या ना चाहें। this is what should happen to us. हमारे लिए हम सबों को ऐसा ही कुछ होना चाहिए था। God justice demanded that we sinners die in an eternal destination. खुदा की जस्टिस जो है, अदालत जो है, ये चाहती है कि हम सब हमेशा के लिए हलाक हो जाएं। At the same time, His grace demands that we should be forgiven. लेकिन उसका फजल जो है हम पे, वो फजल ये चाहता है कि हम सबों को मुआफी दिया जाए। There is one grand verse in Ephesians 1:7. इसीलिए इफिसियों की किताब बाब नंबर 1:7 में एक बहुत अच्छी आयत है। In whom we have redemption through the blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace. हमको उसमें उसके खून के वसीले से मखलसी यानी कसूरों की मुआफी, उसके उस फजल की दौलत के मुवाफिक हासिल है। So what do we conclude? तो हम यहाँ किस अंजाम तक पहुंचते हैं? God's forgiveness is a product of His grace. खुदा की मुआफी जो है वो उसके फजल से पैदा होती है। When we truly grasp this sacrifice, जब हम उसकी कुर्बानी को मुकम्मल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, and the love of God that has been shown to us, और हम पर जो खुदा की मोहब्बत जो उंडेली गई है उसको समझेंगे, what should be our response? तो हमारा रद्दे अमल कैसा रहना चाहिए? Just worship Him in thanksgiving. हमारे खुदा को शुक्रदा करते हुए उसकी इबादत हम करें। The second response is somewhat difficult for us. और दूसरा रिस्पांस जो है वो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। We should respond in the same way that we have obtained forgiveness by forgiving others. जिस तरीके से दूसरों को मुआफी बख्शते हुए, इस तरीके से हमारा रद्दे अमल दिखाते हैं। So His blood was poured out as a sacrifice to forgive the sins of many. तो हमारे खुदावंद का खून जो है बहुतेरों के गुनाहों की मुआफी के वास्ते उंडेला गया है। So we have studied three things which is behind the forgiveness of sins. तो गुनाहों की मुआफी के पीछे रहने वाली 3 बातों को हमने आज समझी है। Unconditional love, बेशर्त मोहब्बत, uncompromising price, अनकॉम्प्रोमाइजिंग कीमत, unending grace, और लामहदूद फजल। and the fourth one is unblemished sacrifice. और चौथी बात यह है कि बेऐब कुर्बानी। At the behind of the forgiveness of given to us, और हमें जो मुआफी बख्शी गई है उसके पीछे there is an unblemished sacrifice that had to take place. एक बेऐब कुर्बानी है जिसे खुदा ने की थी। And this sacrifice had to be offered for the sins of humanity. और ये कुर्बानी जो है इसे तमाम इंसानियत के गुनाहों के वास्ते खुदा ने की थी। God was looking for that unblemished sacrifice, spotless. खुदा उस बेऐब कुर्बानी को देखता है और वो बेनुक्स है। He looked around. और उसने हर तरफ देखा। He did not find any और उस worthy sacrifice. और उस कुर्बानी के लिए लायक इंसान कोई नहीं मिला। Finally, his eyes fell upon his son, Lord Jesus Christ. और आखिरकार उनकी आंखें, उसकी नजर अपने इकलौते बेटे यीशुआ पर पड़ी। Why do we call this Jesus Christ, the Lamb of God, unblemished sacrifice? खुदावंद यीशुआ को खुदा का बर्रा या बेऐब कुर्बानी करके हम क्यों बताते हैं? He knew no sin according to 2 Corinthians 5:21. 2 Corinthians chapter number 5 verse 21 के मुताबिक वो गुनाह से नावाकिफ था। And again, the second thing, और दूसरी बात, in him there was no sin. उसमें गुनाह नहीं था। 1 John chapter 3 and verse 5. 1 John chapter 3 और verse 5 में ये पढ़ते हैं। And thirdly, और तीसरी बात, 1 Peter 2 and 22. 1 Peter 2 की 22,
He committed no sin. वहां लिखा हुआ है कि उसने गुनाह किया ही नहीं। What more perfect sacrifice can God see? तो इससे बेहतर कुर्बानी खुदा को कहाँ मिलेगा? Jesus Christ was a perfect sacrifice. खुदावंद यीशुआ मुकम्मल या कमाल कुर्बानी है। He became one of us. खुदावंद यीशुआ हम में से एक बना। Actually, in the Old Testament times, अगर हम देखें तो पुराने अहदनामा के दिनों में God told the people to offer sacrifices, animal sacrifices. खुदा ने लोगों से कहा कि तुम लोग जाकर जानवरों की कुर्बानियां चढ़ाओ। As a temporary covering of the sins. वो कुर्बानियां लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ वक्त के लिए गुनाहों को ढाने के लिए ढकने के लिए करते थे। Again and again they had to give this animal sacrifices. इसी वास्ते बार बार ये कुर्बानियां गुजरानी पड़ती थीं। But this pointed out to the ultimate sacrifice of Lord Jesus Christ. लेकिन ये कुर्बानियां जो हैं आखिरकार आने वाले हमारे खुदावंद यीशुआ को दिखाते आईं। When the animal was sacrificed, जब एक जानवर को ज़बह करते थे, they put their hands on the neck of that animal, तो उस जानवर के गर्दन पर अपने हाथ रखते थे and they sacrificed that animal. और उसके बाद उस जानदार को वो लोग ज़बह करते थे। Then the people understood तब लोगों को समझ में आता था something was dying in their place. कि मेरी जगह में मेरे मुतबादिल बनकर कोई और या कुछ और मर रहा है। They had to die, but God was providing a substitute. मुझे मरना चाहिए था, लेकिन खुदा मेरे बदले में एक मुतबादिल जानवर दिया है। The sacrificial lamb was a picture of the Lord Jesus Christ, of the Lamb of God who would come into this world. वो कुर्बानी का जानवर जो होता था, वो मुस्तकबिल में आने वाले खुदावंद यीशुआ खुदा के बेटे को दिखाता था। That's why in the scriptures we read, इसीलिए कलाम में हम पढ़ते we हैं, have not been redeemed with gold or silver, हमें सोने और चांद से मखलसी नहीं दी गई, but with the precious blood, लेकिन बेशकीमत खुदावंद यीशुआ के खून से, that of a lamb unblemished, spotless. जो बेऐब और बेनुक्स खुदा का बर्रा बनकर आया। That was the blood of Christ. वो है खुदावंद यीशुआ का खून। Dear friends, many times we are so obsessed with the idea that we have been forgiven of our sins. अजीजों, बहुत सारी बार हम तो समझते हैं कि हमें खुदा ने गुनाहों की मुआफी दी है, अच्छी बात है। But many times we do forget that we have to respond in the same way forgiving others. लेकिन हम बहुत सारी बार ये भूल जाते हैं कि दूसरों के बारे में भी हमें इसी तरीके से पेश आना है। When we come here to worship, जब हम खुदा की इबादत करने के लिए यहाँ आते हैं, yes, definitely we are thankful for the Lord. तो हाँ, जरूर हम खुदा के सामने शुक्र करते हैं। But there's a point of introspection. लेकिन यहाँ पे अपने आप को जांचने का एक नुक्ता है। How have we behaved with others? दूसरों के साथ हम किस तरीके से पेश आए थे? When they have wronged us, जब वो लोग हम पर कुछ गुनाह कर दिए या हमको कुछ नुकसान कर दिए, when they have caused us to hurt, अगर हमें हर्ट करने लगे तो हमने क्या किया? do we offer forgiveness to them? क्या हम उनको भी मुआफी अदा कर सकते हैं? If that is the way we behave, अगर हम इस तरीके से पेश आए हैं, there's no point in finding ourselves guilty. तो हम खुदा के सामने आकर अपने आप को कसूरवार ठहराने की जरूरत नहीं पड़ती। We can be graceful while offering worship. हमारी इबादत अदा करते वक्त खुदा के सामने मकबूल ठहरेंगे। So worship is being thankful for His forgiving characteristics. इस तरीके से इबादत क्या होती है? इबादत खुदा की मुआफी बख्शने वाले किरदार को दिखाने वाली चीज होती है। So it's easy to remember these 4 points which are behind the forgiveness of sins. तो खुदा की मोहब्बत के पीछे रहने वाली इन 4 बातों को हमें याद रखनी है। Unconditional love. पहली बात अनकंडीशनल लव। Secondly, uncompromising price God had to pay. दूसरी बात जो अनकॉम्प्रोमाइज्ड प्राइस जो है, कीमत जो है, जो खुदा ने अदा की। Thirdly, unending grace. तीसरी बात कभी भी खत्म ना होने वाला खुदा का फजल। And fourthly, unblemished sacrifice. और चौथी बात खुदावंद यीशुआ का बेऐब कुर्बानी। These are all the 4 things that are behind God's forgiveness. तो ये सारी 4 बात हैं जो खुदा की मुआफी के
पीछे हैं। Should we not be thankful unto him? तो क्या हम खुदावंद यीशुआ की इस कुर्बानी को लेकर खुदा का शुक्र अदा नहीं करेंगे? So remember these four characters and include in your worship. तो इन 4 बातों को याद करते हुए इनको इबादत में शामिल करके खुदा की इबादत आज शाम को हम करें।